This landmark speech in March 1971 by Sheikh Mujibur Rahman, when Bangladesh became an independent country 9 months later, Bangabandhu became its first president and later prime minister. Bangladesh now has one of the fastest growing economies in the world and is scheduled to officially become a developing country in 2026. अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश सेलिब्रेट 50 एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। बांग्लादेश आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है, तो इसके साथ ही इंटरनेशनली मीडिया बहुत अच्छी कवरेज दे रहा है बांग्लादेश को। और अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट है बांग्लादेश के हवाले से 50 ईयर इंडिपेंडेंस के हवाले से। तो वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। This landmark speech in March 1971 by Sheikh Mujibur Rahman, popularly known as Bangabandhu, inspired the Bengali people in what was then East Pakistan to rise up and prepare for a war of independence. Since we have given blood, we will give more of it. But inshallah, we'll free the people of this land. The struggle this time is for emancipation. The struggle this time is for independence. When Bangladesh became an independent country 9 months later, Bangabandhu became its first president and later prime minister. Ayub Ali, now in his late 70s and a former freedom fighter, visits the Bangladesh Liberation War Museum with his family. He does not want the next generation to forget the sacrifices that were made. We loved Bangabandhu, and he is the one who inspired us to go to war and fight for our independence with our life so that we can live in a free country. We have achieved many things and are happy about it. Badiul Alam, another former fighter, survived several bullet wounds 50 years ago, but says he's disappointed Bangladesh is still not fully self-reliant. We went to war to liberate ourselves from domination and become independent. Since then, the nation has developed a lot and has changed a great deal, but so much more needs to be done so that we are truly a self-reliant country. During the 9-month conflict in 1971, nearly 10 million Bengalis took refuge in India. Zafarullah, a young physician, left the UK to join the Liberation War and set up a field hospital in India. We fought for democracy, for equality, and we have achieved certain things. We live longer, we don't suffer from hunger, but we have no democracy, we have no vote. We are so this, and this is autocracy. Without a democracy, without a freedom of speech, without the equality, a country is meaningless. Once termed a bottomless basket case by former U.S. Secretary of State Henry Kissinger, Bangladesh now has one of the fastest growing economies in the world and is scheduled to officially become a developing country in 2026. Bangladesh has achieved much over the past 50 years, but the nation is still very polarized between two main rival political parties. For many, the aspiration for democracy, free and fair elections still remains a major challenge. Bangladesh has defied many expectations since its birth 50 years ago, but is facing more obstacles on the political front, its overpopulation, and the effects of climate change. Tanveer Chaudhary, Al Jazeera, Dhaka. तो जी ये थी वीडियो। इसके वीडियो के अंदर हमें फ्रीडम फाइटर भी नज़र आए जो कि बांग्लादेश की आज़ादी के टाइम लड़े थे। और ये एक चीज़ है, ये हकीकत है कि जब आप अपनी आवाम को, अपने लोगों को हकूक़ नहीं देंगे, जब वो आपके अंगेंस्ट होंगे, तो वहाँ पे दो रुख निकलते हैं, या तो आप उसके ऊपर हैवी हो जाएंगे या वो आपके ऊपर हैवी हो जाएंगे।
तो यही कुछ हुआ बांग्लादेश के अंदर। और कई चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने मिस की हैं। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे हकूक़ नहीं दिए, वहाँ पे जो हुकूमत बनती थी हुकूमत मुंतकिल नहीं की गई शेख मुजीबुर रहमान को। ऐसी कई महरूमियत थी, ऐसी कई बातें थी उन लोगों के दिलों के अंदर जिसको हम लोगों ने क्लियर नहीं किया, उन लोगों को एतमाद नहीं दिया, हम लोगों ने उनके अंदर महरूमियों को पैदा होने दिया। और साथ ही साथ फिर ऐसा बहुत ऐसी चीज़ें हुई कि जो हमारे ही अगेंस्ट हो गई और हमें आखिरकार बांग्लादेश को एक अलहदा मुल्क बनने की तरफ जाना पड़ा। और बांग्लादेश एक अलहदा मुल्क बना तब तो लोगों का ये ख्याल था कि यह मुल्क सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन आज अमेरिका के सदर हों या अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हों तो वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि बांग्लादेश की इकॉनमी वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन रैंकिंग के अंदर चल रही है और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। और ये बांग्लादेश 2030 तक एक डेवलपमेंट कंट्री होगा, एक अच्छी खासी साउथ एशिया के अंदर अपनी ताकत है वो बना पाएगा। और आप कह सकेंगे कि 2030 के बाद ऐसा डिज़र्व करने वाली कंट्री सिर्फ बांग्लादेश है जो कि साउथ एशिया के अंदर एशियन टाइगर बनने की दौर में शामिल है और वो बनते जा रहा है, क्योंकि उसने साबित किया अपनी इकॉनमी के ज़रिए, अपनी पर कैपिटा के ज़रिए, अपने मुल्क के अंदर जो निज़ाम तालीम है, जो निज़ाम सेहत है, एजुकेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा काम किया है अपनी मईशत के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। तो यही वजह है कि बांग्लादेश आज 50 साल बाद एक कामयाब तरीन कंट्री बन चुका है। साउथ एशिया के अंदर मईशत में बेहतरीन रैंकिंग पे आज बांग्लादेश खड़ा है और गुर्बत ख़त्म करने वाले ममालिक में भी बांग्लादेश का शुमार होना शुरू हो चुका है। तो आने वाले टाइम पे बांग्लादेश एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे जाना और पहचाना जाएगा। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से अलहदा करवाती हैं, तो इसके ऊपर ये इनकी किस्मत थी पाकिस्तान से अलहदा होना, तरक्की करना। तो हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी गमज़दा नहीं होना चाहिए और जो कुछ भी होता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो ये शायद बांग्लादेश का अलहदा होना भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत थी, कोई ना कोई इसमें बेहतरी थी। तो हमें जो है वो अब बांग्लादेश के साथ जो भी नाराज़गी है वो ख़त्म करनी चाहिए और रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए। चाहे वो एक कंट्री के तौर पे पहचाना जाता है, लेकिन हमें फ़ख्र होना चाहिए कि आज हमारे बंगाली भाई तरक्की कर रहे हैं और दुनिया में अपना एक नाम, अपना एक मकाम बना रहे हैं। बांग्लादेश और तरक्की करे और नाम कमाए और दुनिया में अपनी एक पहचान बनाए और साउथ एशिया के अंदर एशियन टाइगर बनने की दौर में जो शामिल है वो अनकरीब बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।